Hello everyone. Today I am going to start new chapter, that is replacement theory. Now this is very much practical, problem based, and it is having wide application in industrial, and you can relate with our daily life as well. In daily life we come across number of equipments. Also in case of industry, number of machinery are used as per requirements, but after certain period of time the machine does not function as it was functioning when it was new. So this may be due to the worn out machine parts. At that time it is required to replace that part and make machine efficient and reusable. In case of industry, this is common and routine procedure to do the replacement of the parts in the machine, and the equipment may show gradual deterioration or sudden failure. So to reutilize the equipment, replacement is required to be done, and replacement involves various kind of replacement cost involved with it, and continuous replacement will lead to situation where the whole equipment replacement is more economical rather than replacement of parts. So replacement policy has to be decided for replacement of part or replacement of machine. So this was a brief introduction about the replacement theory, because the most of parts worn out as the time goes, so we require the replacement of the part or maintenance. So before going for any replacement, we should understand the different types of failures. The types of failures. Now the types of failures, basically there are two types of failures which may occur, that is gradual, and second one is sudden failure. Gradual failure and sudden failure. Gradual means progressive in nature. This failure is progressive, while sudden failure occurs without any prior indication. Without indication, because it does not show any sign of failure. While gradual failure, this is progressive in nature. As the life of an item increases, its operation efficiency decreases. Suppose, let us take one example of automobile. As you buy a new vehicle, as the time goes on, its efficiency decreases as the machine parts starts to worn out. Same applies for the machinery used in industry, and this lead to decrease in output, increase in running cost, and decrease in resale value. So this is about the gradual failure. While in the case of sudden failure, equipment stops working in sudden. Suppose if you buy a new car, and new car, if you run at higher speed, what will happen? The engine is fresh and there is chances of lock of the engine. So the sudden failure, which is without prior any indication, or the misuse of the equipment, can be cause our the equipment loss, or it may cause the stoppage of the work. So replacement will be required in this case. Now there are in progressive in failures, the kinds of failures, certain frequency distribution is given. So the frequency distribution is progressive, retrogressive, and random failure. So here the first is प्रोग्रेसिव फेलियर. प्रोग्रेसिव फेलियर में क्या होगा कि जो भी प्रोबेबिलिटी है फेलियर की, कोई भी इक्विपमेंट की, वो इंक्रीज होगी ऑफ एन आइटम इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इट्स लाइफ. एज द प्रोग्रेसिव फेलियर में क्या होगा कि कोई भी आइटम है तो जैसे ही उसकी लाइफ इंक्रीज होगी, तो इन प्रपोर्शन टू डेथ द सच एज बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, तो उसके फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. एज द लाइफ
of equipment increases, the failure chances or probability increases. On the other hand, there is retrogressive failure. Now in retrogressive failure, the probability of failure in the beginning of life is higher as the item is more, but as the time passes, the chances of its failure becomes less. Than the such failure is called as retrogressive failure. And the third one is random failure. रेट्रोग्रेसिव मीन्स इनिशियल बेसिस में जो फेलियर होता है, ठीक है, जैसे मैंने ऑटोमोबाइल की बात की, ठीक है, इनिशियल में इंजन नॉक पॉसिबल है अगर उसका प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं किया जाए, ठीक है, विदाउट एनी कॉज और रीज़न, अनएक्सपेक्टेड फेलियर. दिस इज completely unexpected. We didn't expected this kind of failure. That is called as random at any time. So that is called as random failure. So in this chapter we will discuss the replacement policy for gradual deterioration of parts and as well as for parts which fail suddenly. So our first model is replacement model whose maintenance and repair cost increases with time. So generally repair and maintenance cost are two major costs which depend on the life of an item. So this cost of item increases with the time, and a stage comes with the cost become so high that it is economical to replace the part. अगर कोई पार्ट है, ठीक है, वो ओल्ड हो जा रहा है तो उसमें रिप्लेसमेंट क्या होगी, बढ़ती जाएगी. फॉर एग्जांपल प्रिंटर का मेंटेनेंस कॉस्ट एट अ टाइम क्या होगा कि उससे बेटर है कि हम एक नया भी प्रिंटर ले लें अगर उसकी रिकरेंस बढ़ जाती है. लेट अस कंसिडर एन इक्विपमेंट विच हैज़ कैपिटल कॉस्ट. सपोज देयर इज़ वन इक्विपमेंट, उसकी कैपिटल कॉस्ट कैपिटल C है और उसकी स्क्रैप वैल्यू है कैपिटल S. द एस्टिमेटेड वैल्यू that an asset will realize upon its sale at the end of its useful life is termed as scrap value. कोई भी इक्विपमेंट है उसका पूरा यूज़ कर लिया जाए, उसकी एंटायर लाइफ, उसके बाद जब उसकी लास्ट प्राइस जो सेल प्राइस होती है दैट विल बी कॉल्ड एज स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू. नाउ assume that the usage period of a machine is T. Suppose we use equipment for T time or T duration. During its usage period, assume that the maintenance and repair cost has been spent on it and which is function of time with, let us say, the function of time f of t, maintenance and repair. Let's consider the total cost for equipment for the first year. So annual cost of an item will be defined as annual cost is equal to the capital cost that is C plus maintenance cost at time t1. Maintenance cost at time t1 और उसमें से उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो माइनस होगी, माइनस स्क्रैप वैल्यू एस. सो दिस विल बी दी अवर एनुअल कॉस्ट. अगर एक साल के लिए कोई भी एक इक्विपमेंट हमने यूज़ किया, ठीक है, T1 टाइम के लिए, तो उसके इस एक साल के अंदर उसकी पहले कैपिटल कॉस्ट आएगी, फिर उसमें मेंटेनेंस हमने कितना किया और स्क्रैप वैल्यू उसमें से माइनस हो जाएगी. Similarly, we can calculate the annual cost for other usage period of the equipment. Now, to decide the replacement of the machine, it is required to find the average of annual cost of its usage time period. यानी कि उसका यूजेज टाइम पीरियड है, उसका एनुअल हम एवरेज हमको फाइंड करना होगा. नाउ देर आर सर्टेन स्टेप्स टू बी कैलकुलेटेड फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज एनुअल कॉस्ट. To decide the replacement of machine,
we have to find the average annual cost of the usage time period. Average annual cost हमको find करनी होगी, that is called as AAC, average annual cost. और उससे हमको पता चलेगा कि कौन से ईयर पे हमको जो एनुअल एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ रही है और उस टाइम के हमको मशीन को रिप्लेस कर देना है इंस्टेड ऑफ मेंटेनेंस. सो सबसे पहले उसके स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ टू फाइंड आउट द एनुअल कॉस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. Since it is the first year, the average annual cost is the same as the annual cost of the first year. So AAC, average annual cost, will be same as the average cost of the first year. Now the second step is to find the for the subsequent year, which means for the second year calculate the difference between purchase cost minus स्क्रैप वैल्यू. दिस डिफरेंस हमको फाइंड करना है. फिर उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, टेक द कम्युलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स. कम्युलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट ये हमको फाइंड करनी है फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स. और लास्ट में सम ऑफ कॉस्ट कैलकुलेटेड इन सेकंड एंड थर्ड स्टेप. इन दोनों का सेकंड प्लस थर्ड स्टेप की जो कॉस्ट है उनका सम करना है. फिफ्थ स्टेप इज डिवाइड दिस कॉस्ट इन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजेस टू फाइंड आउट द एनुअल एवरेज कॉस्ट. विच मीन्स अगर थर्ड ईयर के लिए फाइंड कर रहे तो जो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिली एनुअल कॉस्ट उसको 3 से डिवाइड करना है. अगर फोर्थ ईयर है तो उससे हमको क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा, एवरेज ऑफ एनुअल कॉस्ट. सिक्स स्टेप इज डिसाइड व्हेन टू रिप्लेस द मशीन. और उससे हमको एवरेज एनुअल कॉस्ट से हमको फाइंड करना है कि कब एवरेज एनुअल कॉस्ट मिनिमम है और कब उसके बाद एक पॉइंट होगा जिस साल के लिए हमको एवरेज एनुअल कॉस्ट जो है वो लोवेस्ट मिलेगी. ठीक है, स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, सॉरी वो लोएस्ट होके वो इंक्रीज होती जाएगी. And it is economical to replace machine since its cost is increasing from that year. Suppose 3000 से एनुअल एवरेज कॉस्ट स्टार्ट हो रही है, फिर होके बस 3200 हो रही है. ठीक है, और उसके बाद वो एक पॉइंट पे आके क्या होगी कि वो पहले 2900 हुई, उसके बाद सेकंड ईयर पे 2800 हुई और अब क्या हो रहा है, फोर्थ ईयर से बढ़ना शुरू हो रही है, फिर से 3000 हमको मिली और उसके बाद 3200. सो हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ईयर के बाद जो ये एनुअल एवरेज कॉस्ट है वो अगेन इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, सो उस ईयर से हमको क्या करना है कि मशीन को रिप्लेस कर देना है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उसके बाद हमको क्या करना होगा, इस ईयर से फोर्थ ईयर से हमको मशीन को रिप्लेस करना होगा. सो दिस इज अबाउट द रिप्लेसमेंट मॉडल whose maintenance and repair cost increase with the time. Now let us take example for the same. A firm is considering replacement of a machine whose cost is rupees 12,200 and scrap value is 200. एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 12,200 रुपीज़ और उसकी स्क्रैप वैल्यू 200 है. रनिंग कॉस्ट आर फाउंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस और टू बी एज फॉलो. यहाँ पे ईयर्स दिया है और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे, रनिंग कॉस्ट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी वैल्यूज़ दी है. तो हमको वर्टिकल फॉर्म में हमको लिखना है और हमको फाइंड करना है कि कब मशीन को रिप्लेस करना है. सो लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन. नाउ लेट्स अज्यूम दैट इट इज़ प्रॉफिटेबल टू रिप्लेस अ प्रिंटर आफ्टर सर्टेन ईयर्स, से n नंबर ऑफ ईयर्स. बेस्ड ऑन गिवन डेटा प्रिपेयर टेबल in the theory section for finding out the average annual cost of the machine. ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल फॉर्म करेंगे. सो दिस इज द कंप्लीट टेबल. This is sigma over here. Now here first we have to write the vertical
ईयर। देन द कॉस्ट यहाँ पे क्या है, कॉस्ट सबकी 12,200 जो मशीन की कॉस्ट है वो सब ईयर के लिए सेम ही रहेगी, ठीक है। कम्युलेटिव फाइंड करना है तो सबसे पहले जो कॉस्ट है वो यहाँ पे सबके लिए सेम रहेगी 12,200। उसके बाद जो रीसेल वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है 200 मशीन की रीसेल वैल्यू। फिर उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कॉस्ट माइनस रीसेल वैल्यू, सो उन दोनों का डिफरेंस भी सेम ही रहेगा। सो यहाँ पे 12,000 में से 200 माइनस करेंगे, सो हमको यहाँ पे 12,000 मिलेगा। अभी मेंटेनेंस कॉस्ट है जो हम एवरी ईयर के लिए हमको यहाँ पे दी है, वो सारी की सारी यहाँ पे लिखनी है। सो हियर इट इज़ रिटर्न दी मेंटेनेंस कॉस्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड द कम्युलेटिव ऑफ द सेम, यानी कि ये जो कॉस्ट है प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट और उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी, यानी कि सबसे पहले कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू तो हमने माइनस कर ली और उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट। सो जो यहाँ पे ये वैल्यू है उसके अंदर ये वैल्यू मेंटेनेंस ऐड होगा, ठीक है। सो सबसे पहले कितना आएगा 12,000, सॉरी कम्युलेटिव जो मेंटेनेंस है वो यहाँ पे फाइंड किया है और उसके बाद यहाँ पे टोटल कॉस्ट है, यानी कि 200 प्लस 12,000 इट विल बी 12,200। और कम्युलेटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या है, सिग्मा जी, यानी कि पहले साल के लिए जो मेंटेनेंस है वो 200 था, दूसरे साल का मेंटेनेंस 500 हुआ, यानी कि 2 साल कंप्लीट होने के बाद टोटल मेंटेनेंस कितना होगा 500 प्लस 200, सो इट विल बी 700। अगेन यहाँ पे 700 आया, 700 प्लस 800 इट इज़ इक्वल टू 1500। 3 साल के बाद टोटल मेंटेनेंस कितना होगा, सो यहाँ पे कम्युलेटिव मेंटेनेंस लेना है, इंडिविजुअल ईयर के लिए नहीं लेना है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान में रखना, कम्युलेटिव मेंटेनेंस लेना है हमको। सो स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, एक ईयर के अंदर दूसरे ईयर का मेंटेनेंस ऐड करते जाना है। कम्युलेटिव मेंटेनेंस फाइंड करने के बाद क्या करना है, ये जो है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू उसके अंदर ये कम्युलेटिव मेंटेनेंस ऐड करना है। तो सबसे पहले ईयर के लिए हमको क्या मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट, फिर 12,000 प्लस 700, सो इट विल बी 12,700। सेम वे 12,000 प्लस 1,500 इट विल बी 13,500। सेम वे 12,000 प्लस दिस 14,200। सो लास्ट ईयर के लिए जो देख रहे हो टोटल कॉस्ट कितनी हो जा रही है 26,200। नाउ वी हैव टू फाइंड द एनुअल एवरेज कॉस्ट। अभी एवरेज कैसे लेना है, तो जो टोटल कॉस्ट मिली उससे ईयर को डिवाइड कर देना, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईयर। सो पहले ईयर के लिए एनुअल एवरेज कॉस्ट कितनी रहेगी, सेम रहेगी। दूसरे ईयर के लिए दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। सो सबसे पहले ईयर के लिए 12,200 दिस विल बी द एनुअल एवरेज कॉस्ट। दूसरे ईयर के लिए वो हाफ हो जाएगी, तीसरे ईयर के लिए और कम होगी, फोर्थ ईयर के लिए क्या होगा, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 4, फिफ्थ ईयर के लिए दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 5, सिक्स्थ ईयर के लिए दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 6। सिमिलरली अभी यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, वी कैन फाइंड आउट दैट द एनुअल एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम द 7th ईयर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले इतनी वैल्यू हुई, फिर कम हुई 6,000, फिर 4,000, फिर 3,600, 3,300, 3,167 और यहाँ पे 7th ईयर से हम देख सकते हैं कि 7th ईयर को क्या होगी, ये कॉस्ट जो है मशीन की वो एनुअल एवरेज कॉस्ट यहाँ से इंक्रीज हो रही है, फिर अगेन वो बढ़ती जाएगी और आगे वो क्या होगी, बढ़ती ही जाएगी। सो हमको यहाँ पे क्या करना है, 7th ईयर को, सो यहाँ पे 6 साल कंप्लीट होने के बाद हमको मशीन को रिप्लेस कर देना है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू रिप्लेस द मशीन आफ्टर 6 ईयर्स। 6 ईयर्स का यूज़ करने के बाद मशीन को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड व्हेन टू रिप्लेस अ मशीन। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। न्यू ऑटोमोबाइल व्हीकल कॉस्ट ऑफ ₹10,000 and it can be sold at end of any year with the selling price as shown below. The operating and maintenance cost are given year wise in the following table from the when the automobile vehicle needs to be replaced because of wear and tear। हाँ, यानी कि कब हमको उसका वियर एंड टीयर की वजह से उसको रिप्लेस करना होगा। सो सबसे पहले यहाँ पे जो व्हीकल की कॉस्ट है सबसे पहले टेबल फॉर्म करेंगे। सो टेबल यहाँ पे दिया गया है। सो सबसे पहले कॉस्ट जो है वो तो सेम ही रहेगी 10,000, इट विल बी द सेम। उसके बाद
जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे लिख दी है, और ऑपरेटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट भी यहाँ पे इस कॉलम में लिखनी है। सबसे पहले हमको कॉस्ट मिल गई तो कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस हमको माइनस कर दी। यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू नहीं है, सेलिंग प्राइस दी गई है, ठीक है। सो यहाँ पे सी माइनस एस, और ये यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि जो वैल्यू दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू दी है या सेल्वेज वैल्यू दी है या सेलिंग प्राइस दी है, ठीक है, तीनों यहाँ पे सेम ही होगा। सो उसको कॉस्ट में से माइनस करना है। सो इट विल बी 10,000 माइनस 7,000। सो इट विल बी दिस वैल्यूज़ यहाँ पे सारी की सारी कैलकुलेट करनी है। उसके बाद ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट तो हमको यहाँ पे टेबल में ही दी हुई है। अभी कम्युलेटिव फाइंड करनी है ऑपरेटिव और मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए इट विल बी 1000 और सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा 1000 प्लस 1600। सो इट विल बी 2600। फिर अगेन उसके अंदर 1800 ऐड करना होगा। सो इट विल बी 44। फिर अगेन 2500 उसके अंदर ऐड होगा। सो इट विल बी 6900 प्लस 3000, इट विल बी 9900 प्लस 3500, it will be 13,400. Now we have to find the total cost. Total cost means this C minus S, that is cost minus selling price plus this cumulative cost. So 3000 this value plus this value, इन दोनों का सम करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, इन दोनों का सम करना है। सो यहाँ पे हमको टोटल कॉस्ट मिलेगी। सो यहाँ पे सब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके दी गई है, ठीक है। 3000 प्लस 1000, it will be 4000. Again now for the first year average cost will be 4000 divided by 1, so it will be 4000. फिर 7600 divided by 2, it will be the half of it, so it will be the 3800. Now similarly we will find this divided by 3 years, this value divided by 4, this by 5, and this by 6 years. So similarly we can find the average cost for each year. Now here the first average cost is 4000, then 3800, then 3725, then 3780. So from the fifth year the cost starts to increase. So it is advisable to replace the automobile after 4 years of use, यानी कि 4th year के बाद at the end of 4th year the average cost is minimum at the 4th year, so vehicle can be replaced at the end of 4th year, यानी कि 4th year के बाद हम उसको replace कर सकते हैं, ठीक है। So in this way we calculate the replacement time for a machine or any equipment. So this is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.